Ladies and gentlemen, today once again we have self-discipline. Let me discipline myself also. So, we are discussing the topic from different angles. Today I have given you important angles of the topic of self-disciplines. Also, you have detailed notes on all the angles of self-discipline. The angles are aspects or dimensions that we have, that is neuroscience, and then we have habits, then we have self-compassion, purpose and meaning of life, happiness and self-discipline, and ethics and self-discipline. So I will be discussing this topic of self-discipline from various aspects. It is a multi-dimensional approach. So please make a comment. Multi-dimensional approach to self-discipline. Multi-dimensional approach to self-discipline. Now, multi-dimensional approach is highly essential if you want to write profuse, P-R-O-F-U-S-E, profuse, or you want to become a prolific writer. So prolific, profuse, it means you can elaborate on something, you can go into details. So if you can go into details on any topic, you need multi-dimensional approach, so that you can discuss the topic in a multifaceted way. Another synonym of multidimensional is multifaceted. F-A-C-E-T-E-D, multifaceted. So please write a comment, everybody. Multi-dimensional approach to self-discipline. So multi-dimensional approach to self-discipline. जब भी आप डिटेल में लिखना चाहते हैं, प्रोफ्यूज, P-R-O-F-U-S-E, प्रोफ्यूज, प्रोलिफिक, P-R-O-L-I-F-I-C. जब आप एक चीज़ को तफसील में बताना चाहते हैं, मसलन आप इसे लिखते हैं तो इसे में आपको 30 पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं। 30 पैराग्राफ, आपसे एक पैराग्राफ नहीं लिखा जाता, तो 30 पैराग्राफ आप कैसे लिखोगे? So the solution is multi-dimensional approach, multifaceted approach. कि आप उसकी हिस्ट्री बताए, पॉलिटिकल साइड, इकोनॉमिक साइड, सोशल साइड, कल्चरल साइड, स्पिरिचुअल साइड, साइंटिफिक साइड, इंटरनेशनल साइड, नेशनल साइड, रीजनल साइड. तो जब आप उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करोगे तो फिर आप बहुत कुछ लिख सकोगे या बोल सकोगे. तो जब आप तफसील पे या ऐसे लिखना चाहते हैं या किसी क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है
उसको कहते हैं कसीरुल जहती या मल्टी डायमेंशनल. इन अमेरिकन इंग्लिश वी कॉल इट मल्टी डायमेंशनल, while in British English it is multi-dimensional, multi-faceted. एक चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से देखना, मुख्तलिफ अतराफ से देखना, एक तरफ से नहीं. So self-discipline we are discussing multi-dimensionally with a multi-dimensional approach. तो इसका जो पहला डायमेंशन है that is neuroscience. Please write it. आप लोग करते नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सेफ टू में इसी टॉपिक पे आप लेक्चर दे दें तो उसके लिए पॉइंट्स बनाए. व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू सेल्फ डिसिप्लिन. नंबर 1 डायमेंशन नेवरो साइंस, द साइंस ऑफ नर्व्स, द साइंस ऑफ नेवरो. नेवरो मीन्स योर ब्रेन विच इज CNS. CNS is central nervous system, and then we have peripheral nervous system. Central nervous system and peripheral nervous system. So we have our central nervous system and we have our peripheral nervous system. ठीक है. तो number 1 dimension is neuroscience, the science of brain, the science of बिहेवियर, द साइंस ऑफ आवर नर्व्स. ये हमारी जिस्म में जो है आसाब है, तो इन आसाब का जो साइंस है उसको कहते हैं नेवरो साइंस. नेवरो साइंस डिस्कस सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो हमारा मेन सिस्टम है ब्रेन का और फिर वो ब्रेन से मुख्तलिफ आसाब जो है नर्व्स, न्यूरॉन्स, वो पूरी बॉडी में आपके चले गए हैं. तो इसको कहते हैं नेरो साइंस. सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में नेरो साइंस क्या कहता है? नेरो साइंस ये कहता है कि भाई आपका जो ब्रेन है इसके 2 मेन पार्ट्स है. वो 2 मेन पार्ट्स क्या है? नंबर 1 इज PFC. PFC. ब्रेन हैज 2 मेन पार्ट्स. One is PFC. PFC means prefrontal cortex. Prefrontal cortex. ये सारी मैंने आपको नोट्स में दी है ये चीज़ें. तो आपका जो ब्रेन है इसका जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है या फ्रंट से पहले वाला, सो दैट इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. पूरा महीना हमने इस पे बात की कि हम एकेडमिक राइटिंग कैसे करेंगे, एक स्कॉलर की तरह कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे. तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी ज़रूरी है. टर्मिनोलॉजी, टर्म, इस्तिलाहात. प्री फ्रंटल जो है ये एक वर्ड है. अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो उस नोट्स में प्री फ्रंटल एक लफ्ज़ है, 2 नहीं है. ठीक है. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. तो ये जो प्री फ्रंटल है, फ्रंटल से पहले, प्री का मतलब है बिफोर, फ्रंट से पहले जो कॉर्टेक्स है, दिस कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रेशनैलिटी. एक बच्चे को आप आइसक्रीम देते हैं तो वो ले लेता है. ठीक है. कोई आपकी तनख्वाह देता है आपको तो आप ले लेते हैं. कोई आपको कहते 2 जमा 2 मसावी 4, आपको समझ आती है. ठीक है. आप जज्बाती नहीं होते. दुकानदार के पास आप जाते हैं, दुकानदार को आप पैसे देते हैं, दुकानदार आपको चीज़ देता है, तो कोई जज्बातियत नहीं है. लॉजिकल बात है. आपने पैसे दिए, उसने आपको चीज़ दे दी. ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो बिहेवियर है, आप दुकानदार को ये तो नहीं कह सकते कि जी तुम मुझ किस खाते में पैसे ले रहे हो. आपको पता है कि यार वो आपको चीज़ दे रहे हो और आप उसको पैसे दे रहे हैं. तो ये जो मैकेनिज्म कंट्रोल करता है इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, PFC. तो ये जो आपका अकल है, रेशनल जो आपका अप्रोच है, हर इंसान रेशनल होता है, याद रखे. रेशनल चॉइस थियरी. क्रिमिनोलॉजी में हम देखते हैं कि भाई एक बंदा मुजरिम क्यों बनता है, जुर्म क्यों करता है. उसको पता होता है कि जुर्म है फिर भी करता है, वरना उसको सजा क्यों हम दे देते हैं.
तो हर बंदा, वो बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, वो अकल का इस्तेमाल ज़रूर करता है। उसको अपने फ़ायदे का पता होता है कि मेरा फ़ायदा किधर है। कोई भी बंदा जो है वो बेअकल नहीं होता। सो दैट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो जब आप सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं तो आपका ये वाला ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा यूज में होता है, तो आप ज्यादा अकल वाले बन जाते हैं। एंड द सेकंड इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक, LIMBIC, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इज योर इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसको हम दिल कहते हैं, लेकिन दिल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपका अकल और जज्बात जो है वो दोनों आपका ब्रेन यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेन जो है उसके दो हिस्से हैं, एक अकल वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और दूसरा जज्बात वाला, इमोशंस वाला, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, एहसासात। अब आप देखते हैं जब आप कोई आज एक CSP वफात पा गया है तो उस पर मैंने एक पोस्ट किया है, तो उसके कमेंट्स आप देखें। जिसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग है तो वो उसको पॉजिटिव लेगा, उसको रैशनल लेगा और उस पर एक अकल वाला तबसरा करेगा। लेकिन जो जज्बाती बंदा होगा, जिसका लिम्बिक सिस्टम स्ट्रांग होगा, इमोशंस, तो वो उसको एक और नजर से देखेगा, वही चीज। ठीक है ना। आप एक पोस्ट करें, कोई उसको अप्रिशिएट करता है, कोई उस पर गालियां देता है। अब हैरान होते कि यार क्या चक्कर है, बंदा एक है, बात एक हो रही है, लेकिन उसको रिस्पांस जो है वो मुख्तलिफ मिल रहे हैं। अगर मैं लिखता हूं 2+2=4, तो इसको तो हर बंदा सही रिस्पांस देगा। लेकिन अगर मिक्स टाइप चीज है, कोई डीप चीज है, तो वो आपको जो है फिर उसमें मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक सिस्टम। ये दोनों चीजें जो है ये आपके ब्रेन में मौजूद है, और ये दोनों चीजें जो है वो उसको करता है, कंट्रोल करता है आपकी अकल को और आपके जज्बात को। तो सेल्फ डिसिप्लिन में जब बंदा आता है तो उसका जो ब्रेन है, उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और फिर वो हर चीज को अकल की निगाह से देखता है। नाउ another aspect is habits. Number two dimension of this problem is habit. Habit is our repetitive pattern of behavior which is our second nature. जब हम बार बार एक काम करते हैं, इनवॉलंटरी उसको करते हैं, और वो हमारा सेकंड, दूसरी फितरत बन जाती है, तो उसको आदत कहते हैं। हैबिट इज पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी हैज 3 पार्ट्स: हैबिट, बिहेवियर एंड कैरेक्टर। तो ये आपकी शख्सियत का एक हिस्सा है कि आपके आदत कैसे है, आप ये हाथों को ऐसे वैसे कैसे करते हैं, ठीक है, आप कैसे स्माइल करते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आपकी आवाज का टोन कैसा है, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे खाना खाते हैं, आप कैसे चाय पीते हैं। तो ये आपके हैबिट्स है। रिपीटेटिव बिहेवियर ऑन इनवॉलंटरी बेसिस which is our second nature, and we do it without consumption of extra energy. जो आदत है उस पे हम कोई खास एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते, वो कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता, वो इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है कि वो इसमें आपका विल पावर कोई ज्यादा वो नहीं है, आप कोई खास नियत नहीं बांधते, आप कोई खास शऊरी कोशिश नहीं करते, वो खुद ब खुद होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो बड़े लोगों की बड़ी आदतें होती है जिस पर कोई खर्चा नहीं करते, लेकिन वो खुद ब खुद उनसे हो जाती है। मतलब मैं रात को सोता हूं, तो हर दिन जब मैं रात को सोता हूं तो मैं अपनी उंगलियों से गिनता हूं 8 घंटे। ठीक है, मसलन 11 बजे सोता हूं तो मैं 8 घंटे गिनता हूं। अगर 11 बजे सोता तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बजे मैं अपना अलार्म फिक्स करता हूं ताकि मेरे 8 घंटे नींद पूरी हो जाए। कभी कभी 8:30 भी करता हूं, 9 घंटे भी करता हूं, 8 घंटों से कम मैं नहीं सोता। तो ये मेरी आदत है और ये बहुत पुराने जमाने से है।
जो लोग मुझे करीब से जानते हैं तो उनको पता है कि रात को मैं ये उंगलियों से गिनता हूँ। अगर 12 बजे सोता हूँ तो करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर मैं 8 बजे जो है वो अलार्म लगाता हूँ। तो ये मेरे बहुत सालों से आदत है कि मैं 8 घंटे से कम नींद नहीं करता और हमेशा अलार्म लगाता हूँ और हमेशा उंगलियों से उसको गिनता हूँ। हालांकि मुझे याद होता है कि यार 11 बजे सोना है तो 7 बजे उठना है, 12 बजे सोना है तो 8 बजे उठना है, लेकिन फिर भी मेरी एक आदत बन गई है जो इनवॉल्यूंटरी ऑटोमेटिकली मैं करता हूँ। तो इससे से फिर मेरी ज़िंदगी जो है बड़ी आसान हो गई है। मेरी नींद भी पूरी होती है, मैं अपने सारे काम भी करता हूँ, अपनी ड्यूटीज़ भी सर अंजाम देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता लाइफ में, एक अच्छी आदत की वजह से। तो आदत बनाना जो है मुख्तलिफ चीज़ों का, ये भी सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर आपकी गलत आदतें हैं, एडिक्शंस है, आपको कोई नशा है, तो गलत आदत जो है, जो एडिक्शन है, दैट इज डिफीट ऑफ योर पर्सनालिटी, डिफीट ऑफ योर पर्सनालिटी। मैंने ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा नस्वार रखा है, लेकिन उसे मुझे ऐसा चकराया कि मेरे नस्वार की आदत कभी नहीं बनी। ठीक है, मैंने हर चीज़ को टेस्ट किया है, हर चीज़ को, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन वो मेरी बैड हैबिट नहीं बनी। एडिक्शन, मुझे किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं है, न किसी इंसान की है, न किसी चीज़ की है, न किसी प्रोसेस की है। एडिक्शन नहीं है, मेरे कंट्रोल में है। जो भी मैं करता हूँ अपनी कंट्रोल में करता हूँ, इसी को सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी टेक्निकल है, अच्छी चीज़ों का ऑटोमेटिक आदत बनाना और गलत चीज़ों का आदत जो है उसको ब्रेक करना, ताकि वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। अब जो स्मोकर्स है, वो जब भी किसी के हाथ में सिगरेट देता है तो ऑटोमेटिकली वो सिगरेट लेते हैं और पीना शुरू करते हैं। तो ये भी हैबिट है, लेकिन ये गलत हैबिट है। और अगर मैं जब भी कोई किताब देखता हूं तो मैं किताब जो है वो ऑटोमेटिकली, मेरी हैबिट है कि उसको मैं खोलता हूं। लाइब्रेरी है, कोई किताबों की दुकान है, किसी के हाथ में किताब है, अगर कोई जानने वाला है, न भी जानने वाला तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कैन आई सी योर बुक। तो मैं इस तरह करता हूँ, नशेई की तरह, यार ये किताब अब मैं कैसे खोलूंगा, ये किसको कैसे टच करूँ, इस किताब का नाम क्या है, क्या पढ़ रहा है बंदा। अगर वो नाम नज़र नहीं आ रहा तो मैं ऐसे करता हूँ कि यार ये नाम मुझे नज़र आ जाए। तो ये किताब जो है वो मेरी आदत है, लेकिन एक अच्छी आदत है। सिगरेट अगर मेरी आदत होती तो वो गलत आदत होती। सो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ, students are not allowed to write in Urdu, you have to write in English, broken English, but English। आपके हर लफ्ज़ गलत हो लेकिन आपने इंग्लिश लिखना है। मैं अगर उर्दू बोलता हूं तो आपके समझाने के लिए बोलता हूं, आपको इजाज़त नहीं है कि आप उर्दू लिखे या कोई भी दूसरी ज़बान लिखे, बिकॉज यू आर लर्निंग। और इसको लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। ये अपने आदत बनाओ, लर्निंग बाय डूइंग। हमारा ये है कि भाई जी मैं किताब पढ़ूंगा, कोई नोट्स बनाऊंगा, तो वो स्टडी है। लेकिन फेसबुक पे कमेंट करना ये कौन सी स्टडी है? नहीं, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी एक आदत बनाओ। जब भी लिखते हो इंग्लिश में लिखो, ताकि, क्योंकि आपको इंग्लिश की जरूरत है, उर्दू आपको पहले से आती है। ठीक है ना। मेरे एक सेक्रेटरी है जिसको फ्रेंच आती है, तो मैंने उसको मना किया है कि तुम मेरे साथ इंग्लिश में बात नहीं करोगे, मेरे साथ सिर्फ फ्रेंच में बात करोगे, क्योंकि मेरी फ्रेंच अभी तक इतनी पक्की नहीं है। ये भी एक आदत है मेरी। मैं ब्राजील गया, ब्राजील में पोर्चुगीज बोली जाती है, तो मुझे पोर्चुगीज नहीं आती थी। मैंने वहां लोगों को कहा कि जी मुझे तो या पश्तो आती है या फिर मुझे थोड़ी बहुत पोर्चुगीज आती है। मैंने थोड़ी बहुत सीखी, बेसिक्स, जल्दी इंटरनेट वगैरह से। तो कह रहे पश्तो क्या है? मैंने कहा ये मेरी ज़बान है। उन्होंने कहा हमें तो पश्तो नहीं आती। मैंने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो आप यकीन करेंगे कि 1 महीने में मैं पोर्चुगीज़ में फ्लुएंट हो गया, क्योंकि मैं उनके साथ इंग्लिश नहीं बोलता था। कंफर्ट जोन से अपने आप को निकाला, अपने आप को मुश्किल में डाला, इंग्लिश में नहीं बोलता था उनके साथ। तो वो मजबूर हो गए और मेरे साथ इंग्लिश में, पोर्चुगीज़ में बात करने लगे। तो अब मैंने एक नई ज़बान सीखी जिसके मुझे आगे ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। सो प्लीज़ अली मुर्तज़ा,
write this in English. So I told you already that it is not important. आप लोगों को समझ नहीं आती ना, मैं उर्दू में भी बोलता हूँ फिर भी समझ नहीं आती, पता नहीं मैं कोई बहुत गहरे बोलता हूँ या मैं कोई गलत बंदा हूँ, मुझे तो खुद अपने ऊपर शक हो जाता है कि क्या चक्कर है। मैंने आपको साफ कहा कि 8 घंटे नींद ज़रूरी है। मैं 11 बजे भी सो सकता हूँ, 12 बजे भी सो सकता हूँ, 1 बजे भी सोता हूँ, 10 बजे भी सोता हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? 8 घंटे नींद करना। 8 घंटे नींद जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि तुम किस टाइम सोते हो, तुम बच्चों की तरह जी 7 बज गई जी सो जाओ, नहीं, कोई काम है, कोई मेहमान है, कोई किताब आपने पढ़नी है, कल छुट्टी है, कोई जरूरी काम नहीं है, तो आराम से सो जाओ, 12 बजे सो जाओ, 1 बजे सो जाओ, लेकिन 8 घंटे नींद जरूरी है 24 घंटों में। सो व्हाट टाइम डू यू स्लीप सर? इतने मुश्किल इंग्लिश नहीं है। व्हाट टाइम डू यू स्लीप सर? थोड़ा सा डिफरेंट सोचा करो, डिफरेंट, मुख्तलिफ सोचा करो, मुख्तलिफ लिखा करो, लोगों से मुख्तलिफ रहो। एक जैसे रहोगे, आम लोगों की तरह बातें करोगे, आम लोगों की तरह काम करोगे, तो फिर आप में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा? बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर लोगों के तरीके पे होता और ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसी से अगर आप सीखते तो अभी तक सीख चुके होते। इसका मतलब ये है कि आपको तरीक़ाकार तब्दील करना होगा। यू हैव टू चेंज। आइंस्टाइन सेज दैट सॉल्विंग प्रॉब्लम विद द सेम कंडीशंस इज स्टुपिडिटी। आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश लिखते नहीं है, मेरे बातों पे अमल नहीं करते, सेफ टू में नहीं बोलते, शर्माते हैं, तकलीफ होती है आपको, तो वही तुम्हारी आदत, पुरानी आदत है, लेकिन तुम अपने आप को चेंज भी करना चाहते हो। तो पुरानी आदत से आप नई चेंजेस कैसे लाओगे? यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एंड दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। ना थैंक यू अब्दुल गफ्फार। जस्ट मतलब अभी अली मुर्तजा को मैंने कहा, अब मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा तो ये भाग जाएगा। मतलब हमारे लोग इतने हसास है कि आप किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते, मामूली सी बात करते हो तो इतना हसास है, गरीब जो है वो भाग जाता है, चुप जाता है, फिर आता नहीं है सामने। इतने हमारे लोग कमज़ोर है। अब मैंने उसको कह दिया कि यार तुम इंग्लिश में लिखो, ठीक है, तो अभी उसने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम टेबल बनाना, इस घंटे से उस घंटे की स्टडी करना, इस टाइम पे सोना, उस टाइम पे जागना, ये बिल्कुल गलत है। इसी ने तो इंसान को तबाह कर दिया, क्योंकि इंसान जो है वो फ्लेक्सिबल है। कभी आप बीमार है, कभी आप सिक है, कभी आपका मेहमान आया है, कभी आपको कोई किताब पढ़नी है, कभी कोई घर में प्रॉब्लम है, कोई बाहर प्रॉब्लम है, कोई अच्छा सा कोई मूवी चल रही है, कोई आपने जो है ना कोई मैच देखना है, कोई, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, अपने आप को गले से मत पकड़ो। आगे हम पढ़ेंगे सेल्फ डिसिप्लिन में। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को गले से पकड़ो, 7 बज गए, 9 बज गए, ओ जी सब खत्म, ये वो, आज ही सो जाओ, 9 बज गए, खामखा की जंजाल, खामखा की मुसीबतें। आपको ये जरूरी है कि भाई आपने 8 घंटे नींद पूरी करनी है, बस। ये नहीं कि आपने किस टाइम सोना है और किस टाइम जागना है, ये गलत है। ओके, सो द नेक्स्ट डायमेंशन इज सेल्फ कंपैशन। सेल्फ compassion. Don't be hard on yourself. Don't be hard on yourself. As you understand others, understand yourself. You don't do because you can't do. Okay? You don't do because you can't do. अभी मैंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट किया है, Don't be hard on yourself. उस पर कोई कमेंट तो क्या करो यार, बाहर के लोग कमेंट्स करते हैं, मेरे स्टूडेंट कमेंट नहीं करते, डरते हैं, क्या चक्कर है? तो प्लीज मेक अ कमेंट, आई डोंट डू बिकॉज आई कांट डू।
I don't do because I can't do. This is self compassion. मैं नहीं करता क्योंकि मैं नहीं कर सकता। ओ जी मैं ऐसे नहीं लिखा, मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने करंट अफेयर्स नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने CSS पास नहीं किया, मैंने फलान नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम नहीं कर सकते हो, कर नहीं सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, आप में काबिलियत नहीं है, आपने मेहनत नहीं की है। तो अपने आप को कोसना और अपने आप को मोरद इल्जाम ठहराना और अपने आप को मुजरिम समझना, क्रिमिनलाइजिंग योर सेल्फ। यार आप नहीं आता तो इस वजह से आप नहीं करते ना, आता तो करते। ओ जी मैं एग्जाम में भूल गया हूं, भूल जाता हूं। क्यों भूल जाते? दो में से विचार कभी भूला है? क्योंकि तुम्हें आता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस की है। सो सेल्फ कंपैशन, एंड you have to be compassionate, be kind to yourself. This is also self discipline. सेल्फ डिसिप्लिन जो है, ये नहीं है कि तुम अपने आप को गले से बांध लो या रस्सी से लटका लो या इतना सख्त हो जाओ कि खुदकशी करो, अपने आप को मारो, किसी और को मारो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है। आराम से होले होले अपने आप से मोहब्बत करो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो। ओके, another very important dimension, extremely important dimension of self discipline, as I have given you in the notes, जो नोट्स में मैंने आपको तफसीली दिया है, तफसीली, वो क्या है? Having meaning of life, purpose of life। ठीक है, जिंदगी का मकसद होना, जिंदगी बामाना होना। वो तीर से किसी ने पूछा ना, तीर से, कि तुम इतना तेज क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा पीछे से जोर है। नईम खान से किसी ने पूछा कि तुम क्यों इतने लेक्चर दे रहे हो? पीछे से जोर है। पर्पस ऑफ लाइफ, लाफल, LAAFL, learn, apply, accomplish, be famous, leave legacy। be famous, पॉपुलर नहीं। अभी मैं कोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या कोई लतीफ़ा सुनाऊं तो मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा। पॉपुलर नहीं, फेमस। दुनिया में फेमस लोग बहुत कम होते हैं। आइंस्टाइन, अफलातून जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो फेमस होते हैं, पॉपुलर नहीं। सो यू मस्ट हैव अ मीनिंग ऑफ लाइफ। जिंदगी का कोई माना, कोई मकसद, कोई गोल। फिर आप डिसिप्लिन में होंगे। कोई बड़ा बंदा बनना, लीडर बनना, कोई नाम बनाना, कोई काम करना, कोई कारनामा करना, मशहूर हो जाना, मौत से पहले मशहूर हो जाना और मौत के बाद जो है लेगेसी बनाना, कि लोग आपको याद रखे, कुत्ती बिल्ली की तरह, भैंस की तरह आपको भूल न जाए। तो अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं जिंदगी में, तो ऑटोमेटिकली आप सेल्फ डिसिप्लिन में होंगे। आप टाइम ज़ाया नहीं करोगे, एनर्जी ज़ाया नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, आपके हैबिट्स फिर ठीक होंगे। सो पर्पस ऑफ लाइफ, प्लीज रीड द नोट्स। द नेक्स्ट डायमेंशन इज हैप्पीनेस। Whether self-discipline gives happiness or it gives sadness। बहुत से लोग जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन में इसलिए नहीं आते कि यार ये क्या मुश्किल ज़िंदगी है और हर वक्त डिसिप्लिन में रहना, छोड़ो यार, छोटी सी ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, मर्जी करो, जो दिल में आ जाए करो। तो ऐसे लोग जो है वो खुश नहीं होते। जो सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोग हैं वो खुश होते हैं। हैप्पीनेस विद आई। अब देखना इमरान खान ने हैप्पीनेस को ई के साथ क्यों लिखा, इसका क्या रीजन है? इतना आम लफ्ज है क्योंकि उर्दू में, पश्तो में ई और आई के लिए जो है एक जेर है। हैप्पीनेस को जब आप उर्दू में लिखते हो ना तो इसके नीचे जेर लगाते हो।
तो वो ज़ेर जो है वो ई के लिए भी है, आई के लिए भी है। अभी हमारा हैबिट है, अनकॉन्शियस है, लाशऊर में ये चीज़ गई है कि उर्दू में, पंजाबी में ई और आई दोनों के लिए ज़ेर है, ठीक है। ओ और यू दोनों के लिए पेश है, एक पेश है। तो इस वजह से ई आई ओ यू में हम गड़बड़ करते हैं। अब इतना कॉन्शियस होने कि यार ये इंग्लिश है, ये उर्दू नहीं है, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, इंग्लिश बोल रहा हूं, इतना कॉन्शियस होना, अवेयर होना, अवेक होना, इतना ज्यादा जागना जो है, इट इज सो डिफिकल्ट, हर वक्त जागे रहना। सो सेल्फ डिसिप्लिन विल गिव यू रियल हैप्पीनेस, you will be satisfied, you will be having a fulfilling life, you will be achieving your targets, and you will get genuine, authentic, true happiness. ऐवी कुत्ते की तरह न धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, कोई डिसिप्लिन नहीं है, जो मुंह में आ जाए बोल लिया, जो लिख लिया, जो इधर गया तो उधर गया, ठीक है ना। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो ऐसा बंदा अंदर से बड़ा जलील होता है और अंदर से बहुत नाखुश होता है। और डिसिप्लिन वाला बंदा जो हो, रियल हैप्पीनेस उसको मिलती है। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड एथिक्स, अखलाकियात। क्योंकि जो लोग बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, ओ जी 8 बज गए, हाँ जी बिजली बंद करो, लाइट ऑफ करो, सो जाओ, भागो, तो वो इंसानों को जलील करता है, इंसानों की जो है डिसरिस्पेक्ट करता है अपने सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर में। तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप गैर अखलाकी काम करोगे, ठीक है। स्टूडेंट के साथ तो टीचर का थोड़ा बहुत बनता है, फिर भी मैं इतना डरता हूं क्योंकि हमारे लोग बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। वो नहीं, मतलब किसी की अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अजीब किस्म की हमारी वल्नरेबिलिटीज को कहते हैं, अजीब किस्म की वीकनेस है कि यार किसी ने मुझे गुस्सा हो गया या किसी ने मुझे कोई सख्त अल्फाज में बात की तो मैं तो ख़त्म हो गया, मेरे तो इज़्ज़त का जनाजा निकल गया, हालांकि कुछ भी नहीं होता। तो खामखा के लोग सेंसिटिव होते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर में उस दिन भी मैंने आप लोगों को कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की वजह से न कोई बंदा लिखता है, न कोई टेस्ट में हिस्सा लेता है, न कोई कमेंट करता है, न कोई क्वेश्चन करता है, न कोई पार्टिसिपेट करता है। इतना डरता है लोगों से, इतना डरता है, हालांकि वो उसको जानते हैं, न उसको उसका घर का पता है, लेकिन एक अजीब किस्म का बेइज्जती का एहसास होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इस वजह से ना बंदा कल्चर को चैलेंज कर सकता है, न मजहब को चैलेंज कर सकता है, न अपनी सोसाइटी को चैलेंज कर सकता है, न अपने बड़ों को चैलेंज कर सकता है, न अपने छोटों को चैलेंज कर सकता है। ब्रेवरी, बहादुरी जो है वो खत्म हो जाती है, बंदा बुजदिल बन जाता है। न वो सेफ टू में आता है, न वो कुछ लिखता है, न कोई क्वेश्चन करता है, कुछ भी नहीं करता, कोने खतरे में पड़ा होता है। कोई बाई चांस हो गया, कुछ हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सेल्फ डिसिप्लिन should consider the vulnerabilities, the weaknesses, the sensitivities, the sensibilities of other people. दूसरों लोगों का ख्याल रखना है, अपने सेल्फ डिसिप्लिन के चक्कर में दूसरों को नहीं रुलाना, दूसरों को जलील नहीं करना। हाँ, कोई बंदा कॉन्फिडेंस में आपको लेता है, आपका मुरीद बनता है, आपका शागिर्द बनता है, आपको कहते कि सर मैं आपके हवाले हूँ, जो आपने मेरे साथ करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसे कोई आपको मिल जाए लॉयल किस्म के लोग तो और बात है। अदरवाइज वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क, अदरवाइज
रीड द नोट्स। जितने भी मैंने बातें की, तो ये तमाम बातें जो है ये नोट्स में डिटेल्स के साथ मौजूद है, एग्जाम्पल्स के साथ मौजूद है। रीड द नोट्स ऑन डेली बेसिस। इतने ज़्यादा नोट्स होते हैं कि अगर आप आज नहीं पढ़ोगे, ये भी सेल्फ डिसिप्लिन है कि आज का काम आज करना है, क्योंकि कल के फिर अपने काम होंगे। तो कल फिर आप ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप आज का काम भी करोगे और कल का भी करोगे। क्यों लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं? वो आखिरी महीने में 12 महीनों का काम करना चाहते हैं। वो किधर हो सकता है? एक महीने में एक महीने का काम हो सकता है, 12 महीनों का नहीं हो सकता। तो अगर आज का काम आप आज नहीं करोगे तो कल के तो अपने काम होंगे, उसका फिर क्या होगा? तो फिर रिजल्ट क्या निकलता है? ना आज का काम होता है ना कल का होता है, क्योंकि फिर बंदा इतना ओवर बर्डन हो जाता है कि यार मैं आज वाला काम करूं या कल वाला करूं या परसों वाला करूं या पूरी महीने का काम एक दिन में करूं। तो सेल्फ डिसिप्लिन ये है कि आप डेली का काम डेली करें। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। So I don't see any question. It means that you understand everything. Let me be positive about you. And please go to philosophy classroom to understand a very important philosophy of experiential learning, empiricism, and then read the notes on both self-discipline and empiricism.